Hi, you all are watching Punjab Kesari. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and as we know that the storm has arrived, but उसके साथ साथ मैं आपसे ये नहीं कहूँगी that are you all ready, because I know that we all are very excited and ready to watch it for the very first time at our homes on OTT platform. इससे पहले तूफान कभी OTT platform पे नहीं आया है. So we have with us the family of Tufan, all the multi-talented and multifaceted personalities. I'm talking about Mr. Rakesh Om Prakash Mehra, Mr. Farhan Akhtar, and Beauty with Brains, Mrunal Thakur. All of you, welcome to Punjab Kesari. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, thank you so much. आप कैसे हैं? So my first question is to you, Rakesh sir. Is that कि आप बहुत टाइम से biopics और realistic cinema बनाते आए हैं, since you have got mastery into that now. So what is the most challenging part and what is the most interesting part of making a biopic or a story which is based on real life incident? Yeah, I hope everything is challenging and every moment of from conceiving the film to executing to bringing it in front of the audiences, because challenge में ही मज़ा आता है. अगर challenge ना हो तो फिर तो बहुत ही एक boring ride हो जाती है. So that is, I love the challenges that your life throws at you, your profession throws at you. Realistic फिल्में बनाने मतलब ऐसा सोच के नहीं होता, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. तो अब जैसे तूफान है, दो द कैरेक्टर्स आर फिक्शन, मतलब ऐसे रियल लाइफ जैसे हमने मिल्खा सर पे फिल्म बनाई थी, तो ऐसे जो अजीज़ अली का कैरेक्टर है या अनन्या का कैरेक्टर है, वो रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है, किसी की बायोपिक नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, इट ड्रॉज फ्रॉम रियल लाइफ. जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं हमारे, और हम वी फेस द चैलेंजेस इन लाइफ, वो आपको इसमें वो झलक दिखेगी, वो रिलेशनशिप्स आपको दिखेंगे. सो इट्स अ कंप्लीट, लाइक ये वर्ड भी बहुत यूज़ हो चुका है, फैमिली फिल्म, फैमिली एंटरटेनर. बट मेरा मानना है कि ये आप फिल्म यू कैन सी इट विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. देयर इज अ मैन वुमन रिलेशनशिप, देयर इज़ अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, देयर इज़ अ ग्रैंड मदर ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप, देयर इज़ अ ब्रोमांस ऑफ टू फ्रेंड्स ऑलमोस्ट लाइक ब्रदर्स. गुरु चेले की रिलेशनशिप सबसे बड़ी, मतलब जो हमारे तो माना जाता है हमारे देश में कि गुरु ही सबसे बड़ा होता है. तो वो रिलेशनशिप, एंड ऑल अगेंस्ट इन द सोशल, अगेंस्ट द सोशल टाइम्स टुडे. सो काफ़ी कुछ है ये फिल्म. So we can see that angle in the trailer itself कि काफी कुछ दिखाया गया, emotions है, रिश्ते उसमें दिखाए गए हैं. Even I love that part जहाँ पे एक सिर्फ कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, ट्रेलर में भी बहुत सारे और किरदार भी हैं जिनको इक्वली इम्पोर्टेंस देकर उन्हें भी दिखाया गया है. That's the best part, I believe. So Farhan, I want to know from you the next key, what all did it take to get into the shoes of a boxer for the very first time on screen? Well, it did take a serious amount of effort, undoubtedly, but you were kind of mentally prepared for it. I think going through the process of training on Bhag Milka Bhag helped tremendously, because I was entering again the life of an athlete. Obviously, it's a completely different sport, it's a different discipline, and it's way more difficult to learn. Running is something that comes naturally to most people. I've been a runner before in my life. For me, the challenge in Bhag Milka Bhag was filling Milkha ji's shoes, and kind of occupying his persona. In this, the challenge really was, how do I come across when somebody who watches this film and somebody who maybe is a boxer, how when they see this film they can say, yes, this boy or this man does look like a semi-professional boxer. So that was the big challenge, and you just have to have the right team around you. This cannot happen by yourself. As much as you have the desire to do it, till you don't have the right people telling you what to do, how much to train, what to eat, how much to rest, it's not possible to do. So I had the right team of Drew Neal, my boxing trainer, Sam Jaura, my fitness trainer, Dr. Anand, who was my physiotherapist, who made sure that I would stay away from injury as much as possible. And then, of course, Daryl Foster, who came and choreographed all the fights.
So I mean, what you see on screen, of course, is your effort, is my effort, but I mean, it's shaped, and what you see is collectively our work. मृणाल, आई वांट टू आस्क यू लाइक जिस तरह से ट्रेलर में हम देख रहे हैं, आप हमेशा फरहान को दो चॉइसेस दे रहे हो कि जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, आइदर चूज दिस और चूज दिस। रियल लाइफ में अपनी लाइक इसे आप फॉलो करते हो कि लाइफ जीने के दो ही तरीके, दो चॉइसेस होती हैं हमेशा हमारे पास? जी, फिल्म के शूट ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हर कैरेक्टर जो आप अपने पास्ट में प्ले कर चुके हैं, लाइक से लव सोनिया से लेकर सुपर 30, बाटला हाउस, फिर अब तूफान, मुझे लगता है कि अनन्या का जो प्रिपरेशन था और जो कुछ अनन्या सीख पाई वो सारे कैरेक्टर्स से स्ट्रेंथ जो मैं कहना चाहूँगी, आई हैव टेकन द स्ट्रेंथ फ्रॉम ऑल द पास्ट कैरेक्टर्स, आई हैव पुट इट इन अनन्या, and I believe that this film has not just made me a better actor but a better human. और जिस हिसाब से मैंने लाइफ, जिस तरह से मैं डील करती थी फिल्म के शूटिंग से पहले और जिस तरह से मैं अब डील कर रही हूँ शूट के बाद, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि वी गेट कन्फ्यूज्ड. An individual does get confused. They get confused when ऐसी कोई situation आ जाती है. तो it is very important to have a conversation within ourselves, जो कि हम हमेशा नहीं करते. And it's very simple. कभी ना कभी वो जो problems होती है हमारे life में, उसका जवाब भी सवाल में ही होता है कि मैं क्या करूँ. So I think Mrunal also ends up asking herself कि ये एक सिचुएशन है और ये एक सिचुएशन है. कभी ना कभी जैसे कि चॉइसेस फिल्म चूज़ करने में भी मुझे बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मृणाल आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, 2 साल हो चुके हैं आपकी फ़िल्म नहीं आई. लेकिन मैं हमेशा अपने आप को ये चीज़ कहती रहती हूँ कि फ़िल्म को वक्त कितना भी लगे चलेगा, क्योंकि मेहनत और पेशेंस ये दो एक ऐसे अहम दिस इज़ लाइक अ की टू सक्सेस. यू हैव टू वेट फॉर द बेस्ट थिंग. और मुझे लगता है अनन्या ने मृणाल को चुना, बल्कि मृणाल ने अनन्या, it's that way. So I feel I should say big thank you to this character अनन्या, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है. जिस तरह से अनन्या सिचुएशंस को डील करती है, जिस तरह से वो लोगों को मोटिवेट करती है और जिस तरह से वो अपनी एनर्जी पॉजिटिवली चैनलाइज करती है. सो या थैंक यू. अच्छा राकेश सर, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, सिंस यू आर एसोसिएटेड विद फरहान फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे लगता है अब तो आप उनके घर वालों से ज्यादा उन्हें जान चुके होंगे. सो एनी सीक्रेट्स ऑफ फरहान ऑन द सेट्स व्हिच यू वांट टू शेयर? I think what I want to share is something beautiful, I think, which is the silence we shared. Once we had decided to make this film, I think then there was very little of talking between us. We had a common goal and we were both doing our thing and working towards one common objective, which was giving our best, doing as much hard work and making this one film दिल से. तो सेट पे शायद ही ऐसा कभी मौका हो कि हुए होंगे, मतलब होने भी चाहिए, बट वे वी हैड स्पोकन कि ये ऐसे करते हैं या वैसे करते हैं, अपना कर रहे थे, तो वो एक हो जाता है. वो कभी कोई डिसएग्रीमेंट भी होता है किसी बात को लेके आपस में? वो जब हम शूट खत्म करके घर पे आते थे अपने अपने, तो वहाँ पे बहुत होता है. जैसे किस बात को लेके? नहीं, आई थिंक जब मकसद एक हो अगर आपका, तो जो डिफरेंसेस हैं उनके कुछ मायने नहीं रहते. टीम वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हार्ड वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. बिल्कुल ठीक कहा आपने. फरहान, मैं जब भी आपके बारे में सोचती हूँ ना, मतलब आई थिंक लाइक एक्टर आप हो, डायरेक्टर भी आप हो, प्रोड्यूसर भी आप हो, अच्छे सिंगर भी आप हो, राइटर भी आप हो,
बहुत अच्छा खासा डांस भी आप कर लेते हो, मतलब यू आर ऑल इन वन, यू आर अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, सब आप कर लोगे तो बाकी क्या करेंगे? नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं, जैसे कि F1 कार ड्राइविंग, एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं वो चीज़ें करता हूँ जिनसे मुझे खुशी मिलती है, और उम्मीद मैं यही करूँगा जो भी आपका ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं या जो सुनेंगे इसे या पढ़ेंगे उसे, यही कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने दिल की बात सुनो, और जो चीज़ जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप हमेशा उसके लिए टाइम निकालो। क्योंकि हम एक्चुअली जो यहाँ बैठे हैं आपके सामने, हम वी आर वेरी वेरी लकी पीपल कि हमें वो करने का हमारे हमारे करियर्स जो हैं वो ये हैं, उस चीज़ में है जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी चीज़ से प्यार करते हैं लेकिन करियर की वजह से उन्हें कुछ और करना पड़ता है। तो वी आर वेरी वेरी लकी दैट वी गेट टू डू व्हाट वी लव, बट इवन फॉर द पीपल हु डोंट अनफॉर्चुनेटली हैव दैट चांस कि वो अपनी ज़िंदगी में वो कर सके जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए फिर भी उन्हें वक्त निकालना चाहिए और करना चाहिए। तो आई लुक एट एवरीथिंग दैट आई डू लाइक दैट, कि मेरा काम जो है वो फिल्में बनाना है, फिल्मों में एक्ट करना है, लेकिन वो म्यूज़िक हो या कोई भी चीज़ हो जिससे मैं बहुत मतलब मुझे पसंद है, मैं हमेशा उसके लिए वक्त निकालता हूँ। तो इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू एक्सप्लोर इन योरसेल्फ, और कैन आई आस्क कि जो पीछे काफी थोड़ा वक्त मिला था खुद के साथ करने का, उसमें यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग? I don't, you know, that I think time will tell. You know, it's you never say never. You know, अब अगर कोई इंसान सोचे कि मुझे जो करना था मैं अब तक कर चुका हूँ, then story is over. मतलब उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत क्यों है? तो ज़िंदगी मतलब आगे पड़ी है, लोगों से, ऐसे लोगों से उम्मीद करूँगा मुलाकात हो जो मुझे कुछ नई चीज़ सिखाएं, उनसे मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नई दिशा मुझे दें। तो उम्मीद तो यही है कि ग्रोथ remains constant in whichever field it may be. Mrunal, since Farhan and Rakesh sir are not less than a perfectionist, so were there any nervousness before working with them? Of course, always. लेकिन सी शुरुआत में बिफोर आई गॉट ऑन टू द सेट वो नर्वसनेस थी, एक दो दिन नर्वसनेस थी क्योंकि मैं नई थी, लाइक आई वाज न्यू टू अनन्या, और अनन्या को समझ पाना वाज लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर है, और उसके अलावा जैसे आपने पहले पूछा, जिस तरह से राकेश सर और फरहान उन दोनों का रैपो ऑन सेट वो आँखों ही आँखों में होता है। तो आई यूज टू कीप लुकिंग एट हिम, आई यूज टू कीप लुकिंग एट फरहान कि इन लोग का क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो आई यूज टू फील स्कैर्ड, नर्वस, लेकिन ये पहले हफ्ते की बात थी। उसके बाद जिस तरह से मैं अनन्या के कैरेक्टर को एंजॉय करने लगी, आई स्टार्टेड एंजॉइंग द सेट लाइफ, और फरहान भी जिस तरह से अज्जू का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे पूरी तरह से उसके अंदर घुस चुके थे, और सिचुएशंस ऐसी होती थी कि हम लोग रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे थे, तो देयर वाज ऑलरेडी सो मच हैपनिंग अराउंड अस, तो नर्वसनेस वो बाद में मुझे फील नहीं हुआ। एंड आई ऑल्सो फील कि दोनों, आई थिंक दे आर लाइक डेडली कॉम्बिनेशन टुगेदर, और इस फिल्म का हिस्सा बनना, और मैंने बहुत चीज़ें सीखी। मैं बहुत शांत रहती थी, दे मे नॉट अग्री, बट मैं सेट में थोड़ा शांत रहती थी, मैं ऑब्जर्व करती थी सबको, राकेश सर को। राकेश सर दिखते बहुत शांत थे, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ रहता था हमेशा, उनकी थॉट प्रोसेस, जिस तरह से वो सीन शूट करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मुझे लगा ही नहीं कि राकेश सर इज़ माई डायरेक्टर, यू नो, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक ही इज़ माई फैमिली, और मुझे एक्सप्लेन करते थे। लाइंस कभी मैंने रिहर्स नहीं की, लेकिन हमेशा सिचुएशंस बताते थे और पूछते थे कि, और बहुत बार मैं अटक भी जाती थी और मुझे लगता था कि सर आज मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूं। सो ही वुड से, मृणाल, अगर ये आपके साथ होता या अगर ये आपके पिताजी के साथ होता तो आप कैसे रिएक्ट करती? सर मेरे को तो बहुत गुस्सा आता, तो एग्जैक्टली गुस्सा ही करना है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। तो और हमेशा टेक के बाद, सीन शूट मतलब शॉट शूट करने के बाद सर हमेशा कहते थे कि 1 शॉट फॉर लव, तो मुझे लगता था कि वो प्रेशर निकल जाता था शोल्डर्स से, तो आई कुड जस्ट बी मी, और मुझे लगता है कि वो मैजिकल मोमेंट्स निकल आते थे।
So thank Wow. you for that, sir, because I felt like I was living that character, not performing that character. Rakesh sir, if I ask, like, except for like your love for realistic cinema, which all genre of movies you love watching? मतलब everything, if you really ask me. My favorite is cartoon films. Oh wow. Yeah, I really love them. And I think it was earlier we never got to see so many cartoon films. But as my children were growing up, I revisited that world, you know, that dreamy world through them. And वो तो बड़े हो गए, मेरे को बच्चा ही छोड़ दिया उन्होंने. तो they have graduated to more serious stuff and other things of what grown up people do. But मैं अभी भी वहीं अटका हुआ. ओके, दिल तो बच्चा है जी, हम सब पर अप्लाई होता है मुझे लगता है. फरहान, my one question to you, since Olympics are approaching, so how do you want to keep the morale of our athletes high and you want to? Well, I mean, just I think from all of us, I would just like to say all the best to the entire squad that is going to represent our country. We are already very proud of you. You know, just we know that you will go there and give your best. And we are rooting for you, whether you are running, whether you are swimming, whether you are sailing, whether you are wrestling, or whether you are boxing. We are right there with you every step of the way. So just please go there, take the pressure of winning and losing off your shoulders, and just do your best. That's all we ask for, and all the best to all of you. So thank you so much, all of you, for talking to us in Punjab Kesari. It's one such lovely conversation, and all the very, very best to you for Tufan. Thank you very much.